and that is when I realized that this exam is not all. हम्म When bigger problems come in your life, you realize that बहुत कुछ है, मतलब जो आपके लिए बहुत important है, not this exam only. First thing I understood कि आंसर राइटिंग करनी है, जो भी हो जाए, जितना भी आता है, I have to write. PYQs are just magic, and I knew that optional is something that will make or break. Disaster. I thought I'm just leaving UPSC. I won't give it again and all. Hello and welcome everyone to upscprep.com. Today we have with us Anamika Pandey, who secured rank in Civil Services Exam 2024. So, hi Anamika, congratulations. Thank you, sir. Thank you. तो अनामिका कैसा लग रहा है? मतलब आई थिंक वी बीन टॉकिंग फॉर क्वाइट अ व्हाइल नाउ, सो प्लीज जस्ट गिव मी अ ब्रीफ ऑफ कि मतलब क्या चल रहा है, क्या हो रहा है घर पे? सर when result came, I was at home only. तो तब से घर पे तो बहुत खुशी का ही माहौल है, सब बहुत खुश हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस आ रहे हैं. ऑफ कोर्स जो हम सब जानते हैं, जिनको हम नहीं भी जानते हैं, वो भी कॉन्ग्रेट्स कर रहे हैं, और जो कभी बात नहीं करते थे वो भी बात कर रहे हैं. हम्म. So these things are happening, which are very new to us, and this shows that when you get some success, so you don't know who is your, everybody keeps coming and talking. So this was something surprising for me. हम्म. I never thought about this, and also I'm also feeling very happy that I was just praying कि बस list में नाम आ जाए, कैसे भी आ जाए, and that happened. So there's a sigh of relief Yeah. right now कि चलो, I have something, I've got the job at least. Right. So, Anamika, you were telling me about the family also. So, just give us a brief about कि भाई आप कहाँ से हैं and sort of आपने schooling वगैरह क्या करी है? Where did you go to college? How did your UPSC journey start? सर मैं आजमगढ़ से हूँ, यूपी में डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़. एंड आई हैव डन माय स्कूलिंग फ्रॉम आजमगढ़ इटसेल्फ, लाइक up to 12th I did from Sarvodaya Public School in Azamgarh. Then I went on to study BTech in Mechanical Engineering from GL University Mathura directly after my school. Like I didn't prepare, and I joined the college, which is a private university. So there I did my BTech. And then, sir, after doing that, in the final year itself, I decided to do civil services. Hmm. But then in 2020, COVID came. I was at home only, and many things happened. Like I lost my grandfather in the two waves. My entire family got COVID. So, the preparation actually started in 2021 in September when I came to Delhi, because I decided I have to leave home if I have to study, because I was engaged entirely in, in my family and things going on. So I came to Delhi 2021 September. I started preparing for UPSC properly. And so 2022 I appeared for prelims, and I failed by 6 marks in my first attempt. 2023 I cleared prelims, but my father met with an accident that time before the results only, and he was in ICU for that 2 months of mains. That so I studied for almost 1.5 months for mains. I appeared for mains. That was a very big deal for me to even appear only, because I was shattered and I wasn't studying, just engaged in how is my father, how is he doing, and everything. नेचुरली, So क्योंकि देखो इतना बड़ा जब चीज होती है ना कुछ, तो फिर वो सारा टेंशन वहीं जाता है. yes, sir. And that is when I realized that this exam is not all. हम्म. When bigger problems come in your life, you realize that बहुत कुछ है, मतलब जो आपके लिए बहुत important है, not this exam only. And then I wrote mains. I couldn't clear. Of course, it was very obvious. I knew I won't be able to clear because I haven't studied properly. I haven't written sufficient test series and all. And then I started, like I worked for 2 months as a mentor since I cleared prelims. So uske liye. And then, sir, I left and started preparing for prelims again. So, and when mark sheet came, I was very happy. I know the score was 682, which is not very good, but then I was very happy because the way I wrote the exam, it was too much for me. आपका I ऑप्शन क्या wasn't, था? sir, anthro था. Uh, फिर उसके बाद, sir, I again prepared 2024 prelims. I cleared for civil and forest both. Hmm. And You then I didn't wrote, prepare and then cleared. sorry, sir. You didn't prepare, या you then No, prepared? no, we prepared. I then अच्छा. prepared for 2024 from Feb, I think Feb 2024. I started exclusively for prelims, and then I cleared both forest and civil both. And then I since I had given mains earlier, तो experience तो हो ही गया था मेरे पास that what
नीड्स टू बी डन. तो हम्म फर्स्ट थिंग आई अंडरस्टूड कि आंसर राइटिंग करनी है, जो भी हो जाए, जितना भी आता है, आई हैव टू राइट. I हम्म wrote a lot and I wrote my mains. I worked a lot on my optional also. And this year, sir, I cleared by God's grace. तो लाइक between your first few attempts and the time that you cleared second में अपना prelims, what Hmm. did you do differently to clear prelims? मतलब क्या, what is the secret sauce? Sir, PYQ. And first attempt वो पीवाईक्यू के PYQ. साथ करना क्या होता है? हाँ एवरीबडी वही. सेज कि भाई पीवाईक्यू करना है, बट क्या करना है? ये सर बताती हूँ. जैसे पहली बार मैं जब दे रही थी तभी मैं PYQ किया, मैंने पिछले 10 साल का पूरा किया. पर ऐसे किया कि सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लिए, रिवाइज कर लिए, PYQ उठाया, सॉल्व किया, आंसर मिलाया, ठीक है इतना सही है इतना गलत है, और उसके हिसाब से कितने मार्क्स आ रहे हैं और उस ईयर का कट ऑफ क्या है, अच्छा उससे ऊपर है ठीक ठाक, ठीक है चलो मतलब हो गया. हम्म ये था मेरा कि अच्छा मुझे मेरे ठीक है. फिर मैं टेस्ट लिखती थी तो उसमें मार्क्स नहीं आते थे, फिर मैं क्या करती थी, मैं दूसरा टेस्ट लिखती थी कि मार्क्स आ जाए. उसके साथ एनालिसिस कैसे करनी है ये मुझे नहीं पता था. सो हम्म आई वॉज वेरी इम्पेशेंट पर्सन. दिस आई कैन से इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट, बस सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए था. हम्म तो वो चीज थी. सेकेंड में जब मुझे 1 साल मिला, प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, तब मैंने PYQ जब खोले और मैंने थोड़ा और डेप्थ में स्टडी की, क्योंकि एक ही साल पढ़ा था तो उतना मेरे को नॉलेज भी नहीं थी उस टाइम पे हम्म सर. तो फिर आई डिड इन डेप्थ स्टडी, आई सॉ द क्वेश्चंस, उसमें ऑप्शंस के डिटेल में जाना, क्या प्रपोजिशन है. जैसे कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट सर एक इस वजह से गलत हुआ, मैंने लास्ट मोमेंट पे 3 क्वेश्चंस चेंज कर दिए हम्म आंसर अपने, हम्म। कंफ्यूज होके कि ये नहीं ये लग रहा है. आई जस्ट कट द ऑप्शन की ये नहीं ये लग रहा है, दूसरा चेंज किया और ओएमआर भर दिया था, या ओएमआर भरने से पहले था ये सब? पहले ही मतलब भर कॉपी में ही उसको गलत किया और फिर क्या ये नहीं ये लग रहा है, कंफ्यूजन मतलब. वो जो प्रैक्टिस सिमुलेशन ये सब मैंने Then you किया missed नहीं. by 5ish marks. यस सर. हम्म एंड दैट 3 क्वेश्चंस व्हिच आर द इजीएस्ट क्वेश्चन आई डिड रॉन्ग, वो ही बस मुझे हॉन्ट भी करते रहे. तो फिर मैंने एनालिसिस थोड़ी अच्छे से की कि इट्स नॉट अबाउट द क्वेश्चन, इट्स अबाउट कि कैसे फ्रेमिंग हो रही है क्वेश्चन की. सपोज विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. हम्म सो द वर्ड इज मे बी. तो एकदम से साइंटिस्ट नहीं बनना है कि नहीं दिस कैन बी अ कॉज, ऐसे सोचना है. तो हम्म वो जो एनालिसिस होती है, या ऑप्शन हो गया कि ये ऑप्शन है तो अगर कोई एक मंदिर है उसका लोकेशन पूछ दिया, तो जो बाकी के 3 मंदिर है ऑप्शन में, टेम्पल है, वो हम्म भी देख लो कि कहाँ पे है उसकी लोकेशन. सो हम्म दिस वे आई जस्ट delved into the PYQs more. हम्म और of course I increased my content. With that time I was very short of content. इस बार मैंने अच्छे से पूरा मंथली मैगजीन्स और सब कुछ किया. हम्म And then sir I wrote 2023 का prelims, so we all know was disaster. I thought I'm just leaving UPSC, I won't give it again and all, हम्म but I cleared it by I think 8 9 marks I cleared. That time वो भी बस clear हो गया, but still it was 2023 prelims, so I was happy that I cleared at least. हम्म And then 2024 में सर PYQs are just magic. हम्म। फॉरेस्ट क्लियर करने के लिए भी मैंने PYQ ही और डेप्थ में किया. ठीक है। कि हाँ जैसे फॉर इंस्टेंस सर, जैसे बोला मे बी द कॉज, और 3 ऑप्शंस है, तो कैसे जो साइंस के क्वेश्चंस हो गए, या ऑफ कोर्स कंटेंट तो इंक्रीज होता ही है हर ईयर, हम्म क्योंकि बेसिक्स आपके रिवाइज और होते रहते हैं एंड यू कीप अप एडिंग द करंट अफेयर्स. सो हम्म दैट इज वन थिंग. And also the PYQ analysis, sir, the more you delve into them, the more you kind of understand how UPSC is asking, what is the mindset of the examiner, how the questions are being framed, हम्म how you are supposed to tackle वो सिमुलेशन जो 9:30 to 11:30 और 2:30 to 4:30 का होता है, जिसमें दिमाग जगा के रखना है अपना. वो सब चीजें सर मैंने बहुत सीरियसली ली थी. तो लाइक द टेम्परेचर ऑफ द रूम आई यूज टू मेंटेन, की धूप होगी गर्मी होगी तो सीसैट उसी गर्मी में लगाना है. मैं वो भी ध्यान रखती थी, क्योंकि दैट ऑल्सो मैटर्स. लाइक It दिस does. 2024 प्रीलिम्स, लास्ट मेरी लास्ट सीट थी, विंडो था एंड द सन वाज डायरेक्टली ऑन माय हेड. आई वाज फीलिंग सो exhausted. I just felt बस 2 घंटे कैसे भी बिताने हैं. I asked to change the seat but since it's not allowed, तो हम्म वही बैठना था. धूप लग रही थी, प्रॉब्लम हो रही थी. I was drinking water and just solving the questions. So you हम्म। have to prepare these things seems very trivial कि अरे इतना भी क्या होता है, but सर होता है. These फर्क matters. पड़ता है, बिल्कुल फर्क पड़ता है। आई कंप्लीटली एग्री विद यू। Yes sir. मतलब यू गिवन मी क्वाइट अ एग्जॉस्टिव सॉर्ट ऑफ गाइड टू कि भाई प्रीलिम्स में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ विच ऑब्वियसली इज पीवाईक्यू एनालिसिस, व्हिच आई रियली अप्रिशिएट कि आपने काफ़ी डिटेल में उसको समझाया।
ये। तो कमिंग टू मेंस, हाउ डिड यू अप्रोच मेंस की प्रिपरेशन, गिवन जैसे आपने बताया कि भाई लास्ट ईयर आपके 682 थे मेंस में, हम्म। तो मतलब गिव मी अ ब्रेक डाउन ऑफ कि भाई एसए में क्या था, ऑप्शनल में क्या था, एंड लाइक सॉर्ट ऑफ व्हाट वाज योर अप्रोच कि भाई अच्छा इस साल ये हो चुका है, अब क्या इम्प्रूव करें, कैसे करें? सर ऐसे में फर्स्ट में आई गॉट 100 हम्म। एंड दिस ईयर आई गॉट 109। ओके। तो बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट तो नहीं हुआ है इसमें। हम्म। बट सर अगेन इट्स ऐसे समथिंग इज वेरी डिपेंडिंग उस टाइम पे आपका टॉपिक क्या है और बहुत सारी चीजें हैं। हम्म। तो सर मैं ऐसे में 9 मार्क्स आई इम्प्रूव्ड। GS1 में, सो ऐसे में मैंने कुछ नया नहीं किया, आई जस्ट रोट एसेज एंड हर ऐसे में कोई अच्छा मतलब दैट डिपेंड्स अपॉन माई, लाइक कोई फिलोसफिकल टॉपिक है तो आई यूज टू परफॉर्म वेरी गुड इन दैट, उसमें मुझे मार्क्स मिल जाते थे, आई यूज टू राइट गुड थिंग्स। बट इफ इट्स अ फैक्चुअल टॉपिक, सपोज कुछ इन्वायरमेंट का टॉपिक है या कुछ ऐसा, तो हाउ मच एवर आई राइट इट्स अबाउट मोर इन्फॉर्मेशन लोडिंग देयर, तो हम्म। वो मेरा उतना अच्छा नहीं हो पाता था। तो ऐसे में सर पॉइंट इज इन द फर्स्ट मीन्स मेरा ऑप्शनल में बहुत कम मार्क्स था, आई आई गॉट 216 एंड आई न्यू दैट ऑप्शनल इज समथिंग दैट विल मेक और ब्रेक। तो हम्म। मैंने बहुत ज्यादा फोकस ऑप्शनल पे किया था एंड दिस ईयर आई गॉट 280। दैट्स एब्सोल्युटली ऑसम। तो क्या चेंज किया आपने अपने ऑप्शनल में? सर ऑप्शनल में पहले तो मैंने लिखा ही नहीं, मतलब मेरा फुल लेंथ पेपर ही मैंने मेन पेपर लिखा था, जो कि बहुत बड़ा ब्लंडर था, आई न्यू दैट। पर सर जब मैं फर्स्ट मीन्स लिख रही थी, मैं कितना भी पढ़ लूं मेरे अंदर इतना हिम्मत ही नहीं आती थी कि पूरा पेपर लेके बैठ जाओ और जो आता है लिखो। हम्म। आई ऑलवेज फेल्ट कि अरे नहीं अभी कंटेंट ही नहीं आता, अभी याद ही नहीं है, कैसे शुरू करूंगी, ब्लैंक हो जाती थी। हम्म। तो वो इशू था मेरा ऑप्शनल के साथ, मैं लिख ही नहीं पाती थी उतना हम्म। करेक्ट। जीएस में तो यू कैन राइट एनीथिंग, लाइक प्रीलिम्स की वजह से आपको मोस्ट ऑफ द चीजें आती हैं, तो इंट्रो कंक्लूजन पॉइंट्स बनाना आप कर सकते हैं। बट ऑप्शनल इज समथिंग वेरी स्पेसिफिक थिंग दैट यू आर रीडिंग ओनली फॉर मेंस, स्पेशली एंथ्रो। हम्म। तो उसके लिए सर पहले से कुछ पता नहीं था और उस टाइम पे ठीक से प्रिपेयर भी नहीं किया था, तो पहले मेंस में तो मैं आई वाज जस्ट नॉट होल हार्टेडली गिविंग द मेंस बस। तो वो भी रीजन था, और मुझे लगता है नहीं भी होता तो पहला मेंस में सबको ये होगा कि प्रिपेयर कर लूं तो लिखूं, हम्म। अगर आप पहले से आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हैं तो। हम्म। तो सर वो प्रॉब्लम थी कि लिखा नहीं, पर इस बार मैंने बहुत लिखा सर। हम्म। मतलब आई रोट 8 10 पेपर्स, तो आई रोट टेस्ट सीरीज का ही ओनली, सेक्शनल लिखे, फुल लेंथ लिखे। हम्म। एंड देन सर PYQs का आई डिड ब्रेन स्टॉर्मिंग अलॉट, लाइक एवरी क्वेश्चन मैं लेके बैठती थी, पूरा जो मेन पेपर आता है जैसा वैसे ही उसमें डिसाइड करती थी कि इसमें क्या अटेम्प्ट करूंगी, अगर ये अटेम्प्ट करती हूँ तो व्हाट वुड बी द इंट्रो, पॉइंट्स क्या क्या लिखेंगे, कैसे एक्सपैंड करेंगे उस क्वेश्चन को, हम्म। हेडिंग सब हेडिंग्स क्या होंगी, फिर कंक्लूड कैसे करेंगे, क्या डायग्राम डल सकता है उसमें, क्या एग्जाम्पल ऐड कर सकती हूँ। तो लिखा नहीं मैंने PYQ, बट आई डिड द ब्रेन स्टॉर्मिंग ऑफ हम्म। PYQ। तो दैट वे आई थिंक आई हैव इम्प्रूव्ड एंथ्रो ठीक से। बट जीएस सर वही, मतलब शायद मैं बैलेंस नहीं कर पाई, या मुझे लगा कि कितना भी एफर्ट डालूंगी शायद जीएस में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं होने वाला है। तो आई थिंक आई ट्राइड। राइट, सो आई थिंक देन इंटरव्यू के बारे में मतलब व्हाट्स योर टेक कि भाई क्या होता है, क्या कैसे रहता है, बिकॉज वी गॉट एसोसिएटेड आई बिलीव ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द Yes, sir. पीटी। No, sir. Actually, I've been listening to you since you have started your YouTube channel. ओके। हाँ, मैं आपकी बात मतलब जैसे मेरे दिमाग में घुसती है, इट्स नॉट अबाउट, जैसे कि कोई भी चीज की एनालिसिस आप जब डालते हैं तो मैं वो सुनती हूँ कि प्रीलिम्स आया है, आप टेस्ट सीरीज, मतलब जो भी मार्क्स से कितना फर्क डालना है, हर चीज जो भी आप डालते हैं इट्स काइंड ऑफ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर मी। और मैं वेट करती हूँ, हर चीज इतना सिंप्लीफाई कर देते हैं आप बताते वक्त ना, कि वो लगता है कि नहीं, मन को शांति मिल जाती है कि अच्छा अब हो गया प्रीलिम्स, अब क्या करना है, हो हम्म। गया मेंस अब क्या करना है। और आप बहुत प्रैक्टिकल चीजें भी बोलते हैं, ऐसा भी नहीं है कि नहीं 10 12 घंटे आप पढ़ रहे हो या ये वो ऐसे चीजें। एंड सर आई वुड ऑल्सो लाइक टू से इन CSAT देयर इज अ मैम हु मेड दिस वीडियो ऑफ इंग्लिश। हेवन मैम। मैं हर CSAT के मतलब दो तो CSAT जो लास्ट 2 इयर्स का, मैं उनका वीडियो देख के जाती थी इंग्लिश का, कि कैसे आपको वो करना है। और पता नहीं वही वीडियो मे बी आई थिंक दैट ओपन्स माई माइंड टू सॉल्व द कॉम्प्रिहेंशंस। हम्म। So UPSC prep I've been following, not any I purchased any course, but I've been following you since you have started. So this story that you told about reserve list and everything, I know everything about you हम्म। because I've been listening to you since that time when you started, sir. तो आई थिंक दैट ऑल्सो सॉर्ट ऑफ विल कम बैक टू दैट स्टोरी, बट Yes, sir.
व्हाट वाज योर सॉर्ट ऑफ देन टेक अवे ऑफ द इंटरव्यू कि भाई आपको क्या समझ आया कि क्या काम करता है क्या नहीं करता है, एंड लाइक इफ यू हैड टू इम्प्रूव नेक्स्ट अटेम्प्ट आप दे रहे हो जैसे, तो व्हाट वुड यू चेंज? Sir, I had this misconception that whatever opinion you are having, you should have a logic about that, and you should stand by your ओपिनियन, ऐसा मुझे अब तक लगता था। पर अब लग रहा है कि पहले तो आपका ओपिनियन रैशनल भी होना चाहिए। शायद मेरा इमोशनल ज्यादा हो गया था ओपिनियन। I think I had my logics, and the board members agreed also that time. But then, since I haven't got very good marks, so I'm not the right person to, you know, tell about the interview, like what one should do. Like the people who have got good marks, उनसे समझना ज्यादा अच्छा होगा कि इंटरव्यू में क्या करना चाहिए। मैंने तो बहुत कुछ किया, बट थिंग्स डिडंट वर्क आउट। तो व्हाट डू आई से? सो दैट्स माय पॉइंट कि मतलब अब अगर अगला अटेम्प्ट आप देते हो व्हिच यस सर। आई बिलीव यू वर गिविंग, तो लेट्स से यू मेक इट टू द इंटरव्यू स्टेज, व्हाट वुड यू चेंज? Sir, first, I won't give this much of mocks that I gave. आई थिंक आपका इंटरव्यू भी अप्रैल में कभी था। Yes, sir. तो मैं खाली थी एक्चुअली तो, एंड दिस टाइम वाज माय बहुत हो जाता फर्स्ट है। इंटरव्यू। तो हम्म। आई थॉट कि कुछ भी छोड़ना नहीं है, जितना प्रैक्टिस हो सके करो, एज आई वी डी डू इन अदर स्टेजेस आल्सो। तो वही मैंने किया वैसे तो। बट स्टिल सर, आई थिंक थोड़ा और रैशनल होने की कोशिश करूंगी मैं। और maybe I don't know, sir. I'm not sure. But at that one question, I think I answered all the questions. And हम्म। that one question that I don't think, if I can tell about that right now. प्लीज प्लीज। So the division of UP. So I had my own arguments that it should not be divided. Rather, we should focus on development that way. Maybe, sir. I think, and I was adamant on that. Adamant in the sense, I was giving the logic. So I was asked multiple questions on that. That suppose you are the secretary, and you have to manage a state like UP. So what will you do? So I said, sir, I'll have. He said humans have limitations. सब कुछ तो नहीं कर सकता इंसान. So I said, sir, I'll have a team. It's not that I have to work alone and all. So this I said. So he said, but you won't go for division. So I said, no, sir. I think we can do it that way. And I think if in a family one child is weaker and one is bright, so it's not that we divide the family. Rather, the bride should focus on the weaker one, or the resources should be given to weaker one more because he's weak. It like dividing them is not the solution. So I thought like that, and I gave. So the board member said fair enough. तो मुझे उस वक्त तो लगा कि नहीं, ठीक ही बोला है। पर नंबर खराब आए तो कुछ तो गलती हुई होगी ये मुझसे। क्वेश्चन ठीक ही है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक वी वर आल्सो टॉकिंग अबाउट दिस कि इट्स नॉट दी लाइक आंसर टू एनी वन क्वेश्चन दैट मैटर्स। इट मे बी कि आपने कितना स्ट्रांगली इसको बोला उस मोमेंट पे, दैट माइट हैव मैटर्ड मोर। सर मे बी। क्योंकि आंसर ऐसा कोई बहुत ज्यादा आपका कंट्रोवर्शियल नहीं है, एंड इवन आई एम श्योर यू गेव प्लेंटी ऑफ लॉजिकल बैकग्राउंड टू दिस, तो टेक आपका सही है, खराब नहीं है। बट इट्स सर ऑल्सो कुछ तो गलती हुई होगी। पता नहीं, हो सकता है मेरे बोले में थोड़ा मैं ऐसा स्ट्रांगली बोलती हूँ, यही जो आप कह रहे हैं वो बोलने में लग गया होगा शायद, क्या मेरी। कभी कभार कुछ लोग होते हैं ना जो मतलब हम नॉर्मल बात कर रहे हैं बट सामने वाले को लग रहा है ये डांट क्यों रहे हैं। हाँ 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 सर। शायद वो पोलाइटनेस में मेरी कमी हो गई, आई तो थिंक। मे बी आई थिंक आपके साथ वो काफी होता है। नहीं सर, सब तो बोल रहे थे आई एम वेरी पोलाइट एंड हम्बल एंड प्लेजेंट। तो इन जनरल मैं पूछ रहा हूँ आपसे, हैज लाइक एनीबडी इन योर कॉलेज और फ्रेंड ग्रुप एवर सेड ये डांट क्यों रही है व्हेन यू वर जस्ट लाइक टॉकिंग नॉर्मली? सर डांटने को नहीं, मैं बहुत तेज बोलती हूँ, आवाज मेरी थोड़ी लाउड रहती है। तो बोलते हैं धीरे बोल, धीरे, इतना जरूरत क्या है तेज चिल्लाने की। माई सिस्टर ओनली, लाइक व्हेन आई एम ऑन कॉल, सो आई टेंड टू स्पीक वेरी लाउडली। तो सर आई थिंक यही इम्प्रूव करूंगी, अब आपने बताया तो, कि थोड़ा और आराम से बोलूँ। बाकी फिर देखते हैं जब तक जा, क्योंकि बाय द टाइम यू गेट टू द इंटरव्यू लॉट माइट हैव चेंज्ड, यू विल हैव गॉन टू लाइक ट्रेनिंग जाओगे, 10 चीजें करोगे, तो दोस हाँ। थिंग्स आल्सो हैव एन इम्पैक्ट ऑन यू एज अ पर्सन, राइट? यस सर, श्योर सर। गो आउट इनटू द वर्ल्ड तो 10 चीजें दिखाई देती है, समझ आती है कि भाई अच्छा ऐसे भी होती है। क्योंकि बहुत बार हम्म। वही होता है ना, हम अपने ऐसे छोटे से एरिया में रह रहे हैं, एंड वो छोटे से एरिया में जब हम रह रहे हैं तो फिर वी गेट इनटू अ कंफर्ट जोन। बट कंफर्ट जोन से बाहर निकलना जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज फिर मतलब यू आर नॉट अचीविंग योर पोटेंशियल, यू आर नॉट सॉर्ट ऑफ एक्सपैंडिंग योर डोमेन,
और वो नहीं कर रहे, तो फिर आज की डेट में जो अनामिका है, आई कैन टेल यू नाउ, आज की डेट में जो अनामिका है, शी इज नॉट वेरी केपेबल ऑफ हैंडलिंग ऑल द challenges that will come to her within service. Anamika of today will have to grow and change and evolve as she goes into service, as हम्म. she progresses in the service. Yes sir. क्योंकि लेट्स से आप भाई कमिश्नर बन जाते हो एक पॉइंट पे जाके, तो जो कमिश्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बहुत ही अलग है, पता ही नहीं है आपको क्या क्यों कैसे, हम्म. कुछ तो बदलोगे. Yes sir, yes sir. So Anamika, if you had to give one piece of advice to somebody who's just starting UPSC preparation, what would you give? सर आई वुड से जो फाउंडेशन होता है ना हमारा स्टैटिक, वो जितना अच्छा हो सके हम्म. उतना अच्छा है हर स्टेज के लिए. हम्म. the subjects that is polity, economy, geography, history and science and environment, these subjects और ऑप्शनल भी अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो एंड यू आर अपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर, तो ऑप्शनल भी यू फर्स्ट फिनिश द सिलेबस and do it very diligently. हम्म. If you are doing by self study, then also if you are taking any coaching or something, then also it's fine, whatever one person feels like. But foundation जितना अच्छे से हम पढ़े उतना अच्छा होगा. And just have the PYQ, just see it, like to have this sense कि क्या आता है कैसे आता है. मतलब अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं और आप लास्ट के चैप्टर्स पे भी उतना ही समय दे रहे हैं जितना आप पार्लियामेंट और फंडामेंटल राइट को दे रहे हैं, तो मतलब रीडिंग तो सबकी करनी चाहिए इक्वली, बट द एम्फेसिस, द मोर अंडरस्टैंडिंग दैट यू हैव आर द फ्यू चैप्टर्स ओनली दैट आर गोइंग टू गिव यू द मार्क्स. सो दैट अंडरस्टैंडिंग, पीवाईक्यू थोड़ा देखते रहेंगे बीच बीच में कि अच्छा आज पॉलिटी पढ़ ली तो थोड़ा उस चैप्टर का देख लिया क्वेश्चन क्या आया है. तो ये चीज शुरू से ही रहनी चाहिए. सर आई हैड, थोड़ा ज्यादा बोलती हूँ मैं वैसे आंसर देते वक्त, बट आई हैड That दिस is थिंग, आई appreciated. कांस्टेंट जजमेंट का मेरे अंदर बहुत हमेशा से रहता था हम्म. कि आता है तो देखो कि क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं, नंबर आ रहे हैं कि नहीं, और नंबर कैसे आ रहे हैं. मतलब ऐसा भी नहीं है कि नंबर नहीं आ रहे तो रोने बैठ जाना. यू हैव टू ट्राई इट अगेन, एटलीस्ट हैव अ रियलिटी चेक Yeah. कि क्या कर रहे हैं हम. हम्म. तो दैट इज समथिंग यू शुड डू फ्रॉम द डे वन ओनली. टॉपिक वाइज पीवाईक्यू आते हैं, साथ साथ टॉपिक करो, पीवाईक्यू करो, एंड जस्ट हैव अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन. जिसका बेसिक स्ट्रॉन्ग होता है फिल्म्स में तो उसको आई डोंट थिंक कि बहुत प्रॉब्लम होती है सर, अगर थोड़ा समझ है I पेपर लगा. completely agree with you. यस सर. Right, so Anamika, one last question. यस. एक, we would like you to recommend one book which you think कि भाई लोगों को पढ़नी चाहिए apart from syllabus. सर आई एम नॉट अ पर्सन हु रीड्स अ लॉट ऑफ बुक. मैं ज्यादा बुक, अगर कोई भी किताब आपने कभी पढ़ी हो which has been like sort of influential for you, has been useful for you. भगवत गीता आई हैव रेड हम्म. एंड थिंग्स, आई फॉलो सम ऑफ द टीचिंग्स, आई फॉलो देयर. बट मुझे उतनी लेवल की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कुछ चीजों की है समझ मुझे, बट गीता इज समथिंग दैट यू विल कीप रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग. लेकिन मुझे लगता है कि अभी जो वर्ल्ड चल रहा है हम्म. एंड कंपटीशन, मटेरियलिज्म एंड एवरीथिंग, And उसको कंट्रोल करने के लिए थोड़ा स्पिरिचुअल होना तो मुझे लगता है जरूरी है, वरना तो खुश तो कभी नहीं रहेंगे हम, चाहे जो मिल जाए. तो दैट इज समथिंग आई वुड रिकमेंड. इफ पर्सन हैज टाइम, पढ़ नहीं सकते तो सुनना चाहिए, पर मुझे लगता है सर बहुत अच्छी बुक होगी पढ़ने के लिए. मूवीज तो आई स्टॉप्ड वाचिंग ओनली प्रिपरेशन के टाइम पे. सर एक सीरीज वही, थोड़ा ये भी स्पिरिचुअली हो जाएगा, बट महाभारत आई हैव सीन द सीरियल एंड आई हैव सीन इट 2-3 टाइम्स. लाइक आई गेट अ लॉट ऑफ old one. सर ओल्ड वन ऑल्सो एंड द न्यू वन ऑल्सो आई हैव सीन. नया वाले का, मतलब नया वाला तो मजेदार था थोड़ा. बहुत सर, और जब कृष्ण जी बोलते हैं आके तो ऐसा लगता है कि सच में वही बोल रहे हैं, लाइक द एक्टिंग दैट इज डन, और जो बोलते हैं वो बातें भी हम्म. सर वो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल है. जैसे मेरी मम्मी भी बहुत, हम सब देखते थे तो मम्मी मेरी हमेशा वही कहती है कि बच्चों के भविष्य के निर्माण पे नहीं, चरित्र के निर्माण पे ध्यान देना चाहिए. हम्म. लाइक इफ आई गो इनटू द डेप्थ, तो सत्यवती ऑलवेज वांटेड टू हम्म. make her son the king, हम्म. but she didn't focus on the character building maybe sir. So that is important if we want to give our child a good future or anybody, so the character should be strong and not the uh, future. तो वो भी मम्मी भी मेरी बोलती है पोस्ट से ज्यादा इंसान की काबिलियत पे काम. हाँ. यस सर. तो दैट इज. तो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट सजेशन. एंड
we would also like to send a book to you. So after this is over, please do share your address. मैं एक और कुछ एक किताब which I think you will find interesting will send Yes. copy to you. Thank you so much, sir. Right. So thank you, Anamika, for your time and congratulations again. Thank you so much, sir. It was nice talking to you always. It's always मतलब and it was a pleasure talking to you because I think वो जो opinionated लोग कुछ होते हैं ना तो उनके साथ मजा आता है बात करने में because they stand by their ground and that is where sort of I also get to learn something new. That's your humility, sir. I would say that you said this, but I don't know. I'm a strong, opinionated person. I just say what I feel, and if I'll What is the improve. definition of a strong opinionated person that you say what you feel? I think I need to improve on it. It's This a very I'm good quality. You don't need to change it. Please keep that in mind. You might need to sort of क्या बोलते हैं guide it better Yes, sir. because this is a very very good quality. It's a very rare quality. लोगों के बस की नहीं होती बोलना कि जो उनके मन में है. अगर आप बोल पाते हो तो आई वुड रियली नॉट आस्क यू टू चेंज दैट आई वुड हाउएवर आस्क यू टू बी a little more cognizant of the situation क्योंकि हर जगह ओपिनियन देना भी सही चीज Yes, नहीं sir. है. वही बैकफायर हो जाता है कभी कभी तो I have to be like I have to think about it and work on it. You I'm will. thank you And so much, sir. This interview thing that I was very confused about, I think what went wrong now, I can work on it, sir. you will and all the best on your next attempt. Thank you so much, sir. Thank you.